doubts, any query from your side, you can raise. Otherwise, I will start the deliberations or the lectures pertaining to the Unit 1 under the Engineering Geology theory. So if not, then I think Unit 1, I could not upload the syllabus, although I had shared the screen yesterday, but certainly I told you in the, yesterday that I will share it, but I could not share it. In the morning, I engaged the practical class, and at that time also I recalled that I had to share. Immediately after finishing this class or after when the class is over, I will share the syllabus so that you can go through it. And it is the, as per syllabus, can anyone tell what is the Unit 1? I think if I have not shared, you might have written yesterday or you know little bit. Yes, sir. Rock cut Yes, sir. mineral. One by one, only one. ऐसा नहीं, सभी लोग बोलोगे ना तो फिर इंटरफेरेंस ऑफ वॉइस होगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा और समय खराब हो जाएगा. हाँ, Yes, sir. बताइए. May I? Minerals and rocks. Yes. Minerals and rocks. Very good. So the Unit 1 constitute minerals and rocks, and under that the physical properties of certain rock forming minerals, and then under rocks its origin, texture and classification of igneous, sedimentary and metamorphic rocks will be studied. And that is more important, what are the suitabilities, क्या उसके suitabilities हैं एज इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इस रॉक्स के कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, ये रॉक कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, किस किस फॉर्म में यूज हो सकती है सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में. आइदर डेकोरेटिव स्टोन यूज हो सकती है, फ्लोरिंग मटेरियल के रूप में यूज हो सकती है, रूफिंग मटेरियल के रूप में यूज हो सकती है, कंक्रीट के रूप में यूज हो सकती है. तो इस सारे एस्पेक्ट्स कवर होंगे रॉक के अंतर्गत. रॉक्स की ओरिजिन क्या है, व्हाट आर द कॉमन स्ट्रक्चर्स नेचुरली फॉर्म, टेक्सचर्स क्या हैं, और कौन कौन सी रॉक के आप जानते हैं एलिमेंट्री ये है. बट आई हियर द सब्जेक्ट विल बी टॉट इन डिटेल, ऑल्दो यू माइट हैव लिसन ऑल दीज थिंग्स in the elementary class like 10th or 8th class, that sedimentary, igneous or metamorphic. But here the different aspects will be there which is quite related to the civil engineering projects, and you will feel that yes, it is quite different than elementary aspects related to the igneous, sedimentary and metamorphic rocks. So it will not be only limited to definition, केवल definition तक नहीं रहेगा, इसके डिटेल्स में हम लोग जाएंगे कि क्या इसके इम्पैक्ट हैं डिफरेंट सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पे, किस रॉक का क्या इम्पैक्ट है, किस रॉक को पहले सेलेक्ट करना चाहिए अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है फील्ड में, और हमारे पास ये ऑप्शंस हैं कि हम स्ट्रक्चर बनाएं. अगर इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक है तो उसमें किसमें बनाएं, और उसमें भी फिर दूसरे यूनिट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का. तो जब यूनिट 1 एंड यूनिट 2 पढ़ लेंगे तो आपको इंटर रिलेशनशिप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो अभी चूंकि मिनरल्स पे हम चल रहे हैं, क्योंकि because if you do not know about the concept of the minerals or how the minerals are formed and what are the classifications of the minerals, then I think it will be slightly difficult to understand the rocks. Because in the lab also, in the practical also, in the lab also, when you are going to study the rock in the hand specimen in the lab, at that moment आपको पता होना चाहिए कि इसमें मिनरल्स कौन कौन से हैं. तो जब तक मिनरल्स के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप रॉक के मिनरल कंपोजिशन क्या है उसके बारे में भी अच्छे से नहीं जान सकते. इसलिए यूनिट 1 जो मिनरल है, और मिनरल्स में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है और सर्टेन रॉक फार्मिंग मिनरल्स, इसका मतलब कि रॉक फार्मिंग मिनरल्स के अलावा भी कोई फार्मिंग मिनरल्स होता है क्या? एनी आइडिया टू एनीवन? Any idea? Sir, Here, fossils. these are not minerals. Minerals, as per the definition of the mineral today, I engaged the class of the practical of CE, I think 3 was there. Yes, 3A.
Then I deliberated in detail, and yesterday I told you that certain parts will be overlapping in theory as well as lab. So it is a benefit that when I am going to teach the theory class, automatically if you are not having the information related to the practical of lab in the unit 1 under the practical syllabus, then certainly you will be having many things which you will know and it will be helping you. तो आपको जैसे मिनरल्स में रॉक फार्मिंग मिनरल्स कहा गया है सिलेबस में, और फार्मिंग भी मिनरल्स होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपने सुना भी होगा बायोटाइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब और फार्मिंग मिनरल्स हैं। इससे और निकलते हैं और मिनरल्स हैं, इनसे आपके हेमाटाइट से आयरन, मैग्नेटाइट से आयरन, बॉक्साइट से एल्युमिनियम, ये सब जिनसे निकलते हैं मेटल्स, दैट दोज मिनरल्स आर और फार्मिंग, while rock farming minerals are not suitable for extraction of the metal। तो उसको रॉक फार्मिंग मिनरल कहते हैं, जो रॉक का निर्माण करते हैं। यानी रॉक के निर्माण में, यदि रॉक के फॉर्मेशन में मैक्सिमम जो कंपोजिशन है वो रॉक मिनरल का जिसका है, उसको रॉक फार्मिंग मिनरल कहा जाता है। सिंपल सी लिटरल मीनिंग भी आप देखिए कि रॉक फार्मिंग मिनरल किसे कहते हैं, कि रॉक फार्मिंग मिनरल्स आर दोज मिनरल्स व्हिच आर फॉर्मिंग द रॉक, क्योंकि रॉक इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 2 मिनरल्स। एक मिनरल से राख नहीं बनती है, कम से कम 2 होने चाहिए, ज्यादा भी होता है 5, 6, किसी किसी राख में 7 मिनरल मिलते हैं। तो मिनरल्स क्या है और उसको कैसे फॉर्मेशन होता है मिनरल का, लेट अस डिस्कस व्हाट इज द मिनरल। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिलिबरेटेड इन द प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल वाले कुछ बताओ भाई, आज जिसका प्रैक्टिकल था, स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड वेरी with the you can say the quite interest, तो आपने अटेंड किया है, बताइए what do you mean by the mineral, how can you define the mineral? Sir, mineral is naturally occurring substance which is inorganic in form and have defined number of physical properties. Definite physical properties and chemical composition। ये भी थोड़ा भूल गए तुम, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। Means mineral is a naturally occurring substance which has definite physical properties and chemical composition। It means it has a definite physical properties। और क्या क्या physical properties हैं, can you name them? Sir, color, streak, luxure, cleavage, fracture, hardness, form, shape and size, and specific gravity। What is the wrong in it? Anyone? He has told many things, many physical properties are very correct, but except one. Anyone? Structure, sir. So crystal structure. No, I have not. Shape and size. Yeah, shape and size. I told shape and forms, not the size. Size is not the physical property which is going to be measured in the lab, which I taught in the morning. I taught form or shape of the minerals, not the size. Okay. So in hurry, I think he told the shape and size. He was knowing that it is the shape. So first thing, he just told very correct color, then followed by streak, followed by the luster. So what do you mean by the color? Color of the mineral. I cited the example in the morning also that the naturally occurring substance like coal is not considered as a mineral। CE3A को छोड़ करके कोई स्टूडेंट्स बताए why coal is not considered as mineral। कोल, COAL, कोल, कोयला को मिनरल की श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया है? सब प्योर फॉर्म नहीं है इसकी। फिजिकल फिनोमेना का रिजल्ट। प्रिंस शर्मा बताओ। सर क्योंकि कोल सर नेचुरली अकरिंग ना होकर के किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस के रिमेन से नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होके बना। आपने कितना कंट्राडिक्टरी आंसर दिया, सही है पर गलत हो गया। सर मिनरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। हाँ, आपने कहा, क्या कहा था पहले बार आंसर में? सर क्योंकि वो नेचुरल सब्सटेंस से होकर के नहीं बल्कि एक नेचुरल फिनोमेना से होकर के बना है। सब्सटेंस तो खुद है,
क्वेश्चन से क्या बनेगा, आपने जो बाद में ऐड किया वो ठीक है, it is not formed by inorganic process, it is formed by the organic process, by decomposition of the plants, by decay of the plants. So that is organic involvement is there, organic process is there, organic materials are there, therefore it is not considered as a mineral. जी ओके, ये है, ठीक है। अब आप दूसरी चीज को देखें कि जैसे मैंने एग्जांपल इसके डिफिनीशन के अंतर्गत दिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कलर है, तो 2-3 मिनरल के कलर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हर मिनरल का अपना यूनिक कलर होगा। हो सकता है ब्लैक कलर के 10 मिनरल आपके सामने आए लैब में या नेचर में, फील्ड में, तो आप कह देंगे कि सब एक मिनरल एक ही है, नहीं, जबकि डिफिनीशन कह रहा है कि इट हैज ए डेफिनिट फिजिकल प्रॉपर्टी। देन आप क्या इससे समझते हैं, जब मैं एग्जांपल एक तरफ दे रहा हूं कि 10 मिनरल हैं और सब 10 ब्लैक, इसका मतलब कलर सबका सेम हुआ, तो फिर कैसे एक मिनरल का एक ही कलर होगा? ठीक, ऐसा नहीं है, क्वार्ट्ज के कई वैरायटी, क्वार्ट्ज के कई कलर हैं। क्वार्ट्ज एक मिनरल है, वो पिंक कलर का भी क्वार्ट्ज मिलता है, व्हाइट कलर क्वार्ट्ज है, ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज है, नो कलर, ठीक है सर। उसकी बाकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे हम। हाँ, ये बात है कि सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, जैसे सेट्स ऑफ प्रॉपर्टी तो 2-3 प्रॉपर्टीज ऐसी जरूर होंगी जो कभी भी दूसरे मिनरल में वो नहीं पाया जाएगा। सपोज है कि क्वार्ट्ज का कलर यदि व्हाइट है और दूसरे मिनरल का भी कलर व्हाइट है, तो क्वार्ट्ज में क्लीवेज एब्सेंट है लेकिन कैल्साइट में प्रेजेंट है। Calcite is white in color, quartz is white in color, but quartz does not have cleavage while calcite is having cleavage. So let me discuss again. I will take the help of the screen sharing and I will share the screen. With the help of those screens, I will teach the physical properties in a very effective manner so that you can perceive it nicely. So let me share the screen. Just give a moment. Screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Visible. Yes, So sir. this manual has been prepared by us. It is not in the book where I have written myself, Handbook of Rock and Minerals, for you people only. For you people means for the students only. I have prepared so that it can help to the students in a effective manner. The chromite एक मिनरल है। अब इसमें क्या है कि हम कलर की जहां तक बात करते हैं, तो जो अपीयरेंस होगा, जो कलर रिफ्लेक्शन होगा नेचुरल लाइट में, और ये माइंड इट दैट ऑल दीज फोटोग्राफ्स हैव बीन टेकन कैप्चर्ड फ्रॉम द लैब ओनली, लैब सैंपल्स। जो आप अभी आएंगे तो देखेंगे यही सैंपल्स मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि कोई और सैंपल्स कहीं की किताब से या किसी बाहर से ऐसे नेट से लिया गया है, ऐसा नहीं है। इसलिए यही सैंपल्स ऑनलाइन में हम लोग पढ़ा रहे हैं, या हम बताते हैं आपको कि जिससे आप आए लैब में फिजिकल देखें तो टाइम नुकसान ना हो कि सर ने तो ये पढ़ाया था, यहाँ कुछ और दिख रहा है, ऐसा नहीं। सो the appearance of the mineral in hand specimen under natural light, the reflection and particular wavelength. So ऐसे डार्क कलर है ब्लैक, क्या ब्लैक इसको कहेंगे आप? No, no. No. Not completely black. Pardon? Sir, it is a mixture of grey and black. तो उसका कलर का नाम क्या है? ऐसे थोड़ी लिखेंगे इट इज मिक्सचर ऑफ ग्रे एंड ब्लैक। It's a grayish black. या ब्लैक इज ग्रे या ग्रे इज ब्लैक, क्या होगा? Black is grey. Sir, it's black is gray. दूसरे को भी Greyish किसी ने- black. Black is grey. और किसी ने बोला है, और किसी स्टूडेंट ने कुछ बोला है। अमृता, अमृता, Yes, sir. what is the color in your opinion of this sample? Sir, grayish black. Gray is black. Okay, means gray is dominant or black is dominant? Sir, black. Black is dominant. Anybody is differing from this?
Any student is differing from this color? Whatever just Amrita has told? No. So the correction should be there here, grayish black. Okay. The streak, it is another physical properties. There is a streak plate. With help of the streak plate, when you are rubbing the mineral on that plate, you are getting the color of the powder of that mineral. And here it is written dark brown. Means it is not same as color. Although as per the definition, it is the color of the powder of the mineral. So when you are rubbing on the streak plate, you are getting, okay, streak. So it is written dark brown. It means if the clay color is the grayish black and yielding the streak as a dark brown, it means this is the properties, physical properties, which is different from the color. And what is the, yeah, once again. Please. Achha, once again, Abhishek. Yes, about streak. Yeah. About the streak, na? I just mentioned the dark brown is the streak, white color is the black. It means even the grayish black is the color of the mineral, and you are getting and rubbing on this mineral, you are rubbing this mineral on the streak, and you are getting the color of the powder of the mineral. Powder मतलब इसको ब्रेक करके पाउडर नहीं करना है, स्ट्रिक प्लेट होती है उस पर रब करना होता है, ठीक है। तो इससे क्या मिलता है आपको, स्ट्रिक, अनदर फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलती है। लस्टर इज दी व्हाट, द शाइनिंग ऑफ द मिनरल अंडर नेचुरल लाइट, एंड शाइनिंग इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स देखिए, एक कैसा एग्जाम्पल आप बताइए जिसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से शाइनिंग मिनरल की बदल जाएगी या बदल जाती है। ग्रेफाइट एंड डायमंड। अरे वाह, कौन बोला है? सर आदित्य। आदित्य, वेरी गुड। आदित्य वर्णवाल। यस सर। वेरी गुड, क्योंकि इसमें आदित्य दो हैं, आदित्य भरद्वाज एंड आदित्य वर्णवाल। ओके, वेरी गुड आदित्य। क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स का डिफरेंस होने से लस्टर बदल रहा है। जैसे आदित्य ने बहुत ही राइट एग्जांपल दिया है ग्रेफाइट एंड डायमंड का। डायमंड हैज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स व्हाइल ग्रेफाइट इज ए सीट स्ट्रक्चर। द केमिकल कंपोजिशन इज सेम, ओके, एंड you shape is different, luster is different due to this crystal structure. So this is one luster. Luster submetallic कहा गया है। If it is not reflecting like a metal, then the luster is neither reflecting like a metal nor it is a dull, totally dull, then it is called submetallic. Cleavage and fracture. What is the next physical property? That is cleavage. All these physical properties I am discussing, if you are understanding here, you will be also very much, these properties will be helpful in the lab. And I will be coming to the classification of the mineral also, like carbonate minerals, sulfide minerals, oxide minerals, silicate minerals, silicate and non-silicate दो में बांटेंगे, और फिर उसमें फिर ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, ये सब डिस्कशन होगा, सिलिकेट एंड नॉन सिलिकेट। तो जैसे आप ये है, ये ऑक्साइड मिनरल है, क्योंकि इसे केमिकल कंपोजिशन को यदि आप देखें, दिस इज नॉट योर पार्ट टू अंडरस्टैंड और एस्टिमेट द केमिकल कंपोजिशन। नाइदर आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दैट यू रिमेंबर एंड मग अप द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ईच मिनरल। दैट इज नॉट बेनिफिशियल टू यू as far as civil engineering is concerned or civil engineers, it is not beneficial at all. बेनिफिट्स कहाँ है कि हमको मिनरल पहचानना है, क्योंकि मिनरल जब पहचानेंगे तो उसके आधार पे हम रॉक को पहचानेंगे, और रॉक जब पहचान लेंगे तो हम सिलेक्शन ऑफ द रॉक सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पे किस एरिया में एप्लीकेशन होगा उसका, उस पे जाएंगे। तो अभी जो बात चल रही है, अभी जो स्टेज है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्लीवेज और फ्रैक्चर। आर नहीं होगा, ऑब्लिक है, क्लीवेज R means oblique fracture, means both are not same. Cleavage is different than fracture. Can anyone tell what is the difference between the cleavage and fracture?
So fracture is caused due to some natural forces, like due to the penetration of water and sir air like this. And so cleavage may be due to physical forces. But Anyone else? Sir, cleavage is natural, like एक मिनट कोई गर्ल स्टूडेंट बोलने दीजिए. हाँ बताओ. sir, cleavage is natural breaking, splitting of the mineral, and the fracture is due to some physical conditions like flowing of water and by natural. Yes, by rapid cooling and Yes. rapid heating, like that, all that. Okay, thank you, Ria. So this is the naturally occurring, means the smooth surface होना चाहिए cleavage में. Cleavage कैसे पहचानेंगे? देखिए cleavage की जो definition है particular ये है कि tendency of a mineral to break along a particular plane. Planar होना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2 क्या कंडीशन है? रिपीटिटिव होना चाहिए, रिपीट करना चाहिए. ऐसा नहीं जैसे मैं अब आपको दिखाता हूं, तब आप क्लीवेज को और अच्छे से जानेंगे. आई एम जस्ट शेयरिंग यू. यहाँ तो कोई क्लीवेज नहीं है, कोई क्लीवेज नहीं, नो क्लीवेज, क्योंकि कोई प्लेन नहीं. आपको मैं क्लीवेज दिखाता हूं. देखिए एक इसको थोड़ा सा अगर हम बड़ा करते हैं, कर्सर दिख रहा है आपको, माउस? Yes, sir. देखिए Sir, the plane along which mineral breaks naturally, this is one plane. अगर आप ध्यान से देखेंगे रिपीटिटिव लाइन है. ये देखिए पैरेलल टू, पैरेलल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक लाइन ऐसे जा रही, एक लाइन इधर से आ गई, एक लाइन इधर से आ गई, तो हम कहें क्लीवेज है. अगर ठीक है एक लाइन डायगोनल है, ये ध्यान से अगर आप देखेंगे, और बड़ा करता हूं मैं, तो एक भी अगर ध्यान से देखेंगे एक लाइन ऐसे जा रही है, डायगोनल like this. अगर इसको हम पलट दें, means we reverse the position of this mineral, because here it is a numbering. M1 means M stands for mineral and 1. Already in the lab it is there. And then there is on this plane and this diagonal plane and another plane like this. तो आप जब हैंड स्पेसिमेन में इसको हर तरफ से देखिए, एक चीज और भी है कि जब फिजिकल प्रॉपर्टीज कभी आप स्टडी करें मिनरल की, तो मिनरल को चारों तरफ अच्छे से घुमाएं. ऐसा नहीं कि एक फेस पकड़ा एक तरफ से और बस जल्दी देख लिया, सर ने ये पढ़ाया था, ऐसा इसमें क्लीवेज है, प्रेजेंट है, किताब को देखिए ही नहीं प्रैक्टिकल में. मेरा मानना है कि व्हेन आई एम टीचिंग टू यू इन सच ए वे दैट यू डोंट रिक्वायर एनी बुक इन द लैब, एंड व्हाट एवर आई एम जस्ट डिस्कसिंग हियर, इफ यू आर क्लियर अबाउट इट, then you don't need any book during the lab or the consultation. तो आप उसको सैंपल को चारों तरफ घुमाइए कि इसमें क्लीवेज कैसा दिख रहा है, क्लीवेज है या नहीं, पहले क्लीवेज है या नहीं. अगर नहीं है तो बिल्कुल साफ है. जैसे अगर इसमें कोई क्लीवेज नहीं, नो क्लीवेज, अब इस लाइन को आप कहेंगे क्लीवेज है? नहीं है, क्योंकि एक ही लाइन है, रिपीट नहीं हो रही है, उसके पैरेलल कोई लाइन नहीं जा रही है ऐसी जिसको हम कहें कि नहीं ये क्लीवेज है. ठीक है. इसमें लस्टर क्या कह सकते हैं? सर नॉन मेटेलिक. नॉन मेटेलिक नंबर 1. नॉन मेटेलिक में भी क्या हो सकता है? और एक क्लास ग्रुप C3A वाले बताएं, उनको तो पढ़ाया है. इतना जल्दी भूल गए? Soapy or greasy, both are correct. Soapy or greasy. Appearance like a soap or grease. सॉरी, जो ऑयल या ग्रीस होता है उस तरह से, ग्रीस की तरह यदि अपीयरेंस हो रहा है तो दिस इज सोपी और ग्रीसी लस्टर. ओके, हियर इट इज ए फ्रैक्चर, नॉट द क्लीवेज. इफ यू सी, दिस इज द conchoidal concave shape fracture have been formed here. See carefully, like this. So this is called conchoidal fracture. Cleavage is absent. Suppose that here, इसमें लस्टर कैसा दिख रहा है? Metallic. Metallic, sir. Very good. So very good. And फॉर्म पे लेट पे आएंगे, बाद में आएंगे, अभी तो फॉर्म पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि केवल C3 वालों को पढ़ाई से मतलब ये नहीं कि सबको पढ़ा दिया. फॉर्म पे मैं लेटर आऊंगा. फिर इसके बाद अब सपोज दैट आगे चलता हूं.
लस्टर अर्दी का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए लस्टर अर्दी, अर्दी मतलब डल, डल लस्टर अर्दी, सॉइल की तरह, अर्थ की तरह, है कि नहीं है? यस सर। इसमें कोई साइनिंग आ रही है? नो सर। नो सर। नो सर देखिए अब जो मैं दूसरे लेक्चर पे चलता हूँ, विट्रियस पे, कहीं विट्रियस लेकिन लेक्चर मिलता है, होगा जरूर। Yes, vitreous luster. Vitreous luster. What do you mean by the vitreous luster? The shining of the mineral like a broken glass. Like a broken glass. ब्रोकन ग्लास में क्या होता है, एक जगह से तेज से चमक आती है, एक जगह से डल आती है ना? आप देखा है टूटा हुआ कांच? Broken, like a shining like a broken glass. From certain places it will be reflecting like a metallic metals, and at a certain places it like a dull. So combination of these two, if it is occurring in one mineral, that is called vitreous luster. Okay, so this is the concept of the vitreous luster. Vitreous. So luster कितने हो गए आपके? और luster आपको अब क्लियर हुआ कि luster क्या होता है? Anyone? Anyone who is having any doubt related to the luster? And one South Indian boy yesterday who had just asked me, क्या नाम था? संतोष Yashwant. यशवंत कंदुकरी यशवंत. Yeah, Yashwant. You are here, Yashwant? Yes, sir. Yes, sir. I'm here. So are you getting the point, or you are having certain problems at a certain juncture? No, sir. I'm getting points. Don't hesitate, okay? Okay, sir. Whatever the steps where you are feeling the problems, I am here to explain that, okay? Okay, sir. So don't hesitate. Then the next physical properties, fracture, I have already discussed. Hardness is very important in the civil engineering also, in the later on also, in the next semesters onwards, or in the, you can say, the practical in the field, well, the field engineers, you will have this opportunity to have to know the hardness of the mineral or rock. So if you talk about the hardness, there was a scientist called Mohs, M-O-H-O, Mohs, and apostrophe s लगा देते हैं तो उसका स्केल, हार्डनेस का स्केल, Mohs हार्डनेस स्केल, have been defined, have been established to estimate the hardness of the mineral. What do you mean by the hardness? Can anyone have the idea? What do you understand, or what you feel that what is the hardness? सर मतलब उस पे एक्सटर्नल कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे वो टूट जाएगा. बियर करने की कैपेसिटी. हैं? सर एक्सटर्नल फोर्स को bear the, so the ability to bear the stress. IP stands for what? So Ishan Pachori. Ishan. Sir, Ishan Pachori. Ishan, na? Yes, sir. You belong to MP? No, sir. From Uttar Pradesh, Agra. Oh, very good. Okay. So Ishan, you used the one term stress. Yes, sir. Whether hardness is reflected or it is measured on the surface of the mineral or inside the surface of the mineral? Sir, we measure the hardness for the whole surface, whole the mineral, the workpiece we have, the sample specimen. What do you mean by the stress? What do you mean by the stress then? Stress is the force which is applied on the that our specimen per unit area. Very good. So if suppose that you are applying force in the per unit area on any substance or like mineral, what you will get it? What you will get? क्या मतलब मिलेगा क्या? उसको क्या फिर कहाँ तक ले जाएंगे? स्ट्रेस मान लीजिए हमने फोर्स लगाया एक यूनिट एरिया पे मिनरल पे, फिर आप क्या करेंगे? कितना फोर्स लगाते जाएंगे? क्या करेंगे? सर वो उसका फिर वहाँ पे देखेंगे सर वो कि सर उसमें स्ट्रेस होगा, एक लिमिटिंग पॉइंट होगा जिस पर उसके बाद मतलब फिर सर एक पॉइंट होगा जिस पे वो फ्रैक्चर कर जाएगा, मतलब उसमें जो है वो टूट जाएगा,
तो उस पॉइंट तक उस पर देखेंगे तो वो पॉइंट उसका मतलब मैक्सिमम उसका फ्रैक्चर स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेस नहीं आएगा, स्ट्रेस तो आप अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेंथ आएगी। यस सर। ठीक है, स्ट्रेस नहीं आएगा। स्ट्रेस तो आप मेजर करेंगे कितना फोर्स लगाया कि हमने वो टूट गया, फेल कर गया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। ओके, यस सर। आर यू विथ मी और नॉट? यस सर, यस सर। स्ट्रेस स्ट्रेंथ मिलेगा। तो स्ट्रेंथ और हार्डनेस में क्या फर्क है? एनीवन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेंथ and hardness? Sir, hardness is the measure how a body is resisting the deformation, and the strength is the bearing capacity of any mineral. Wow, very good. Aditya is a very good concept. Very good. Although IP has also very good concept, he has explained in a nice way. But जैसे होता है ना सोने में सुहागा, उसने सोना तो आईपी ने कहा ही था, सुहागा थोड़ा सा आदित्य ने कर दिया। बहुत ही कैटेगोरिकल डिफरेंस आदित्य ने बताया। तो इसलिए मैं डिफाइन जब इस तरह से करें तो क्या गुना होगा कि रेजिस्टेंस टू स्क्रैच, द हार्डनेस इज डिफाइंड रेजिस्टेंस टू स्क्रैच टू एनी मटेरियल और मिनरल। मिनरल को अगर स्क्रैच हम करते हैं वो कितना रेजिस्टेंस देता है, यही उसकी हार्डनेस है। क्यों? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस टू स्क्रैच जल्दी होगा, रेजिस्टेंस कम होगा उसका स्क्रैचिंग में, तो डिफॉर्मेशन भी उसके होने की संभावना अधिक है। सॉफ्ट मिनरल होगा तो जल्दी डिफॉर्म होगा या हार्ड मिनरल होगा तो जल्दी डिफॉर्म होगा? सॉफ्ट से। सॉफ्ट मिनरल। सॉफ्ट जब मिनरल जल्दी डिफॉर्म होगा तो स्क्रैचिंग प्रॉपर्टी सॉफ्ट की कम होगी, रेजिस्टेंस मतलब कम होगा, रेजिस्टेंस विल बी लेस फॉर स्क्रैच। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि रेजिस्टेंस टू स्क्रैच इज द हार्डनेस, और अकॉर्डिंग टू द महोज स्केल ऑफ द हार्डनेस, आई टेल यू द लिस्ट ऑफ द हार्डनेस which is also in the hardness box in the lab also। जब आप लैब करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो उसमें ये बॉक्स आपको मिलेगा लेबोरेटरी में, दैट इज कॉल्ड हार्डनेस बॉक्स। एंड महोज स्केल ऑफ हार्डनेस क्या है, ये आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। महोज स्केल ऑफ हार्डनेस स्टार्ट फ्रॉम द सॉफ्टेस्ट मिनरल टू द हार्डेस्ट मिनरल विच आर अकरिंग नेचुरली एंड अकर्स आर फाउंड इन नेचर, मतलब ऑन द अर्थ सरफेस। जैसे टाल्क, TALC, टाल्क 1, gypsum 2, calcite 3, all these I am naming the mineral, name of the minerals, talc 1, gypsum 2, what is 1, 2? Hardness, scale of hardness. Scale, sir. Then, yeah, calcite 3, fluorite 4, apatite 5, then orthoclase is a mineral 6, quartz 7, and this quartz के बाद topaz 8, corundum 9, and diamond 10. So this is 1 to 10 Mohs scale of hardness. It is one aspect, इससे हम हार्डनेस को एस्टिमेट करते हैं मिनरल का। दूसरा है ग्लास प्लेट, स्ट्रीक प्लेट और नेल। नेल को हम प्रीफर इसलिए सॉफ्ट मिनरल में करते हैं कि नेल से जो मिनरल स्क्रैच हो जाए वो सॉफ्ट बहुत होगा तभी स्क्रैच हो जाएगा, बिकॉज द हार्डनेस ऑफ नेल इज कंसीडर्ड टू बी 2.5। बट आई नेवर encourage students to use the nail frequently because you may damage your nail in the lab. So for that purpose, I provide you the clue here. I give you clue. If suppose that the mineral is yielding the streak, all the minerals do not yield the streak, I tell you. Like quartz does not have any streak. अगर किताब में आप पढ़ेंगे इसका मतलब वो ब्रोकन करके लिया गया, लैब में आपको नहीं मिलेगा। ब्रोकन करके क्वार्ट्ज किताब में दिखेगा, क्वार्ट्ज की स्ट्रीक व्हाइट है, तो मैं इस पे गलत नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत लिखा है, लेकिन क्यों लिखा है लैब में आपको यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पाउडर तो करने देंगे नहीं मिनरल को। आपको स्ट्रीक प्लेट पे आप स्ट्रीक निकालेंगे, स्ट्रीक प्लेट पे रब करेंगे, और स्ट्रीक प्लेट की हार्डनेस कितनी होती है? 5.5। सो 5 से ऊपर यदि क्वार्ट्ज की हार्डनेस कितनी बताया मैंने आदित्य? सर क्वार्ट्ज की हार्डनेस 7। Very good. The hardness of the quartz is 7,
and if the streak plate hardness is 5, whether quartz is going to yield the streak or not on the streak plate. Again, I repeat the question. If the hardness of the streak plate is 5, which I have just told to you, the streak of the hardness of the streak plate is 5. If the quartz is going to be rubbed on the streak plate, whether it will yield the streak or not? Yes, sir, it will yield the streak. Yes, sir, it will, sir. Yes, sir. Yes, sir, it will, sir. No, sir. No, कौन कहा? Anybody for no? No, sir. Nobody is for no. Only for it. सर स्ट्रिप प्लेट डैमेज हो जाएगी और क्वार्ट्ज पे कोई असर नहीं होगा। हाँ, कौन बोला? अभिषेक त्रिपाठी? नो सर, मयंक सरकार। Yes, sir, I also stand for no. Yeah, Abhishek Tripathi, you go for no? Yes, sir. Very good. Mayank Sarkar and Abhishek Tripathi are correct because I think you people have not listened me properly. क्वेश्चन को हरी में मत सुनना करेगा, मैंने रिपीट किया था क्वेश्चन, इसीलिए हमने ये बात कही थी कि स्ट्रिक प्लेट की हार्डनेस 5 है, जो मैं बता रहा हूँ, जो आप वेल प्रूव्ड है। क्वार्ट्ज की हार्डनेस आप ही ने बताया कि 7 है, वो भी बात सही है। तो जब 5 पे 7 को आप रब करेंगे तो कैसे स्ट्रिक प्लेट देगा? वो तो उसको ग्रुप उसका स्क्रैचिंग करने लगेगा स्ट्रिक प्लेट की, क्योंकि क्वार्ट्ज इज हार्डर देन स्ट्रिक प्लेट। तो क्वार्ट्ज का कैसे पाउडर निकलेगा स्ट्रिक प्लेट पे रब करने से? नाउ यू आर क्लियर और नॉट? सर मैंने स्टार्टिंग में नो ही लोगों ने यस यस कर दिया, जिसने नो कहा वो भी ठीक है, हाँ कह दिया तो थोड़ी देर के लिए ठीक था, लेकिन गलत है। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, हो जाता है। मैंने कहा ना, कभी कभी इन हरी you are knowing the fact but you are deviating from the fact. So these are called certain momentum distraction. Momental, not momentum. कभी at moment sudden distraction हुआ, detraction हुआ कोई सी चीज से, कोई बात जल्दीबाजी में भी हुआ, तो ऐसा हो जाता है। इसका मतलब नहीं है कि जिसने हाँ कहा उसको पता नहीं है कंसेप्ट, उसका कंसेप्ट पता है, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा उसको सुनने में प्रश्न को, बट इसीलिए मैं रिपीट किया था क्वेश्चन कि आप ध्यान से सुने। नेक्स्ट चीज है कि कैसे एस्टिमेट करते हैं। ये ऑलवेज इट द एप्लीकेशन ऑफ आइदर हार्डनेस बॉक्स और एप्लीकेशन ऑफ द ग्लास प्लेट, indirect application of the streak plate, indirect application of the streak plate to understand the hardness or estimate the hardness. Indirect application है। अगर आपसे पूछा जाए वाइबा में कि tell the apparatus which are used for estimation of the hardness of the mineral, तो कभी ये मत कहना streak plate. Streak plate डायरेक्ट estimation के लिए नहीं यूज होता है, हमने indirect estimation के लिए बोला है, क्योंकि वो हेल्प कर रहा है आपको। कैसे हेल्प कर रहा है? Can anyone tell how it is helping? सर वो बस ये बता सकता है कि वो 5 से ग्रेटर है, 5 से कम है। हाँ, तो उससे हेल्प कर सकते हैं जी। फिर इससे तो बहुत बड़ा हेल्प हुआ, क्या हुआ वो मैं जानना चाहता हूँ। सर इससे हमें ये let Aditya speak. Aditya wants to speak some. सर द बेनिफिट वी गॉट इज कि जो हमारा सॉफ्ट मिनरल था उसको और हार्डर मिनरल देन 5 एंड लेस देन 5 हम लोगों ने क्लासिफाई कर लिया। तो फर्दर अगर हमें आइडेंटिफिकेशन करनी होगी तो वी कैन गो इजीली, अदरवाइज हम लोग को जीरो से चेक करना होता। यही पॉइंट, लास्ट सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ he has said that we have to start, if you are not knowing you have to start from 1 टाल्क लिया, जिप्सम लिया, फिर कैल्साइट लिया, सबसे पता चला स्क्रैच करते जा रहे हैं और अननेसेसरी। जब अगर द मिनरल व्हिच हैज yielded the streak, no need to go for the mineral like orthoclase or quartz, नहीं चेक करना है, क्योंकि उसकी जिस मिनरल ने स्ट्रिक दे दिया है स्ट्रिक प्लेट पे, इसका मतलब इट इज लेस हार्डर, इट इज हार्डर लेस देन 5, हार्डनेस इज लेस देन 5। तो हार्डनेस जब लेस देन 5 है तो हम क्यों ना अब बीच का रास्ता अपना, 5 से नीचे वाला, 1 से ऊपर वाले, है कि नहीं? सो द टाइम सेविंग, टाइम इज सेव्ड if you are knowing the streak, it is yielding, mineral is yielding the streak through the streak plate, it means it is harder than hardness is less than 5, then you have the choice. If the mineral is scratched so soft that it is scratched by
nail like mica, muscovite, biotite, mica minerals, mica group minerals सब nail से scratch हो जाते हैं। तो इसका मतलब the hardness of the mica group minerals like muscovite, biotite, मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट जस्ट, ये स्क्रीन दिख रही है ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, sir. So, yeah, this is biotite, one of the mica group minerals. You see, pearly luster है, like a pearl, appearance like a pearl, and the flaky, form flaky है, एक एक flake निकल जाएगा, form जो है flaky है। अभी आता हूँ form पे तो मैं डिस्कस करूंगा form के बारे में। एक एक flake निकल जाएंगे आपके, flake layer by layer निकल जाएगा। So flaky form is flaky and hardness is so low that it can be scratched by nail and 1 to 2. So इसकी हार्डनेस, ये सारे फ्रेगमेंट्स हैं देखिए मिनरल के। बायोटाइट एक बड़ा टुकड़ा था, उसका स्टूडेंट्स ने आपकी के जो सीनियर्स थे उसको थोड़ा थोड़ा इतना साफ तोड़ टाड़ के रख, तोड़ा, खूब फ्रेगमेंट कर दिया है। बट द ब्यूटी इज दैट इफ यू हैव ब्रोकन मैनुअली आल्सो एनी मिनरल इन द डिफरेंट पार्ट्स, then those fragments are broken parts will have the same property, physical property as a chunk. जितना बड़ा सैंपल का, एक बड़ा सैंपल लेंगे उसको दो भागों में तोड़ देंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज नहीं बदलने वाली, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज वही होगी जो एक बड़ा सा बायोटाइट था। ये बड़ा बायोटाइट यहाँ पे था, जैसे उसको थोड़ा थोड़ा इतना साफ था कि लड़कों ने देखते देखते इसको लेयर करते करते निकालते। So now I am coming to the next property, hardness. Estimation of hardness is clear to everybody, or is there any confusion? Because this is very important property. Is there any confusion? Then you ask me. सर यदि किसी मटेरियल की हार्डनेस स्ट्रिक प्लेट के इक्वल हो तो सर क्या होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। इक्वल हो, हार्डनेस कैसे इक्वल होगी उसके स्ट्रिक प्लेट? मींस यस सर, स्ट्रिक प्लेट की सर आपने बताई कि 5 रहते हैं मुंह, देन किसी मटेरियल की भी 5 हो, देन सर स्ट्रिक प्लेट कैसे हेल्प करेगी? आपके ऊपर छोड़, आप ही बताइए ना, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, आप ही उलझेंगे इसमें। आप प्रश्न तो बहुत अच्छा पूछा है, लेकिन हमको ये बताइए कि 5 कैसे आया? जब स्ट्रिक प्लेट की हार्डनेस 5 है तो दूसरे मिनरल की हार्डनेस स्ट्रिक प्लेट कैसे 5 आई? जैसे मान लीजिए एपाटाइट है, एपाटाइट का हेलो तो पार्डन सर, स्ट्रिक प्लेट जिस मटेरियल का है उसी मटेरियल का हम लोग मिनरल ले लें तो मिनरल वही तो कह रहा हूँ, एपाटाइट है ना, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ। आर्यमान जैन, आर्यमान है ना, आर्यमान या मान? हाँ सर, आर्यमन। क्या नाम है सर? आर्यमन जैन। आर्यमन, वेरी गुड। आर्यमन जैन, I have already told the name of the mineral having the hardness 5 like apatite. अब इनका प्रश्न है कि कोई मिनरल यदि 5 हार्डनेस है और स्ट्रिक प्लेट की 5 है तो कैसे क्या करेंगे हार्डनेस? तो उसके 6 से चेक करेंगे ना, हायर जो हार्डनेस है जिस मिनरल की उससे चेक करेंगे। यदि वो स्क्रैच हो जाता है और 4 से नहीं चेक होता है, इट मींस इट इज 5। नहीं सर, अगर मान लीजिए आपने 5 का मेरे को मिनरल दिया और मैंने पहली बार 5 की स्ट्रिक एपेटाइट की उठा ली स्ट्रिक प्लेट, तो सर जब मैं उसको रब करूंगा क्या? नहीं रब नहीं होगा। नहीं तो सर होगा क्या? सर होगा कुछ नहीं, स्ट्रिक नहीं मिलेगी आपको। मैंने ये बताया कि यदि यील्ड कर रहा है स्ट्रिक तो 5 से कम है, यदि यील्ड स्ट्रिक नहीं कर रहा है मिनरल तो 5 से ज्यादा है। तो जब 5 से ज्यादा है तो 5 से नेक्स्ट जो 6th वाला हार्डर मिनरल है वो क्या है? Orthoclase. So you will test with the orthoclase. If orthoclase is scratching that mineral, it means the hardness rests between 5 to 6. I told you that you cannot estimate the absolute hardness like 1, 1.5, 2.5 by the hardness box. You will have the range in the hardness like 1 to 2. रेंज का मतलब ये भी नहीं कि 2-3, अरे सॉरी 2-4, ऐसा नहीं होगा। 1-2, 2 to 3, 3 to 4, like that. You cannot jump 3 to 5 like that because आपके पास मिनरल है 4 का। Either
the mineral will have the hardness between 3 to 4 or 4 to 5. It will not be 3 to 5. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. आलोक, Yes, sir. आप satisfied हैं या अभी भी confusion कुछ है doubt? No, sir. Satisfied, sir. Very good question you have asked. ऐसे ही क्वेश्चन पूछा करिए जिससे लगे कि दिमाग खोलने वाला हो थोड़ा, चाहे आपकी दिमाग खुले चाहे मेरा खुले, बात बराबर है। तो अब नेक्स्ट, तो किसी को प्रॉब्लम है हार्डनेस से एस्टिमेशन की, एस्टिमेशन ऑफ द हार्डनेस? सर हार्डनेस में प्रॉब्लम नहीं है, बस क्लीवेज या फ्रैक्चर का डेफिनेशन एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, क्लीवेज, द टेंडेंसी ऑफ ए मिनरल टू ब्रेक अलोंग ए पर्टिकुलर प्लेन, एंड फ्रैक्चर is a irregular structures, either irregular in two mode, एक तो प्लेनर नहीं होता है, नॉन प्लेनर है, दूसरा ये रिपीटिटिव नहीं है, परवेसिव नहीं है, पैरेलिज्म नहीं है इसमें। अब पहचान, अब समझे? यस सर। जिसने पूछा है उसको समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। और अगर कोई और डाउट हो पूछिए, अदरवाइज आई प्रोसीड टू नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। फॉर्म, फॉर्म ऑफ द मिनरल और शेप ऑफ द मिनरल। जिस फॉर्म और शेप में मिनरल आपको मिल रहा है, मिलता है या नहीं, लैब में जिस फॉर्म में या हैंड स्पेसिमेन में आप फील्ड में गए, जिस फॉर्म में मिनरल आपको मिला उसका फॉर्म कैसे पहचानेंगे, क्या करेंगे? फॉर्म मतलब शेप। शेप और कलर, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो आपके विजडम पे आधारित है। इसमें जैसे लस्टर को भी हम कह सकते हैं अप टू सर्टेन एक्सटेंट, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई अपरेटस यूज नहीं हो रहा है। कलर भी आप बाय योर नेकेड आई देख रहे हैं, ठीक है, और फॉर्म में भी आप वही दिख रहे हैं जिस फॉर्म में वो है मिनरल, जो शेप है। सो द फॉर्म, सपोज दैट दिस इज वन क्रिस्टल of the calcite and it is broken from here and here, यहाँ से एक टूटा हुआ है, एक मतलब अपने से नहीं टूटा है, मतलब ऐसे इतना सॉफ्ट है, इसकी हार्डनेस जो है 2 ही है, इसलिए कहीं थोड़ा सा भी इस पे वो हुआ ये ब्रेक कर गया है। और स्केचिंग तो देखिए लड़के कितना नेल लगा लगा के स्केच किया हुआ है। तो यहाँ से जैसे टूटा, अगर इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करके ऐसे लाएं, ये क्या शेप बनता है? ऐसे। एक्सक्यूज मी सर। या सर कर्सर को थोड़ा सा स्लो मूव कीजिए क्योंकि लैग कर रहा है तो। अच्छा, वेरी गुड। यहाँ से ऐसे दिख रहा है कर्सर? यस सर। यस सर। मेरा पॉइंट ये है कि मैं इसको यहाँ से जैसे यहाँ से लाता हूँ, ला रहा हूँ, इसको यहाँ मिला दिया, फिर ये है फेस, इधर का फेस है, यहाँ से ऐसे ब्रोकन पार्ट को मिला दिया। अब कैसा शेप दिख रहा है? ऐसा ही था एक क्रिस्टल। पैरेललोग्राम जैसा कुछ? पैरेललोग्राम तो नहीं, कोई शेप कहेंगे आप इसको। मुझे 2 फॉर्म में बताइए, राम्बोहेड्रल या प्रिज्मेटिक? रोम्बोहेड्रल सर। रोम्बोहेड्रल सर। रोम्बोहेड्रल। वेरी गुड। तो राम्बोहेड्रल यदि आपको दिखता है मिलाने पे तो राम्बोहेड्रल कहिए, यदि नहीं दिखता है, प्रिज्म टाइप का दिखता है तो प्रिज्मेटिक कहिए, ठीक है। बट योर आंसर राम्बोहेड्रल इज मैक्स करेक्ट, मतलब करेक्ट है। इसमें मैं आई एग्री विथ योर पॉइंट, दिस द शेप इज राम्बोहेड्रल बिकॉज इट अपीयरेंस इफ आई एक्सट्रापोलेट लाइक दिस, इट थोड़ा सा ए रोम्बस टाइप का फेस दिखेगा। नाउ द फॉर्म, जैसे इसको फ्लेकी फॉर्म बताया हमने, if you are getting flakes layer by layer, then it is called flaky form. Then it is a granular form, like a grains, जहाँ पे grains दिखे, granular form, and many forms. Let me discuss number of forms. Yes, ये दिख रहा है form? क्या होगा form? आलोक वर्मा। Yes sir. क्या form होगा? सॉरी सर, नहीं पता चल पा रहा है। नहीं पता चल पा रहा है? इतना दिख नहीं रहा है? दिख रहा है सर, समझ नहीं आ रहा है। अरे अभिषेक त्रिपाठी, साइड्स प्रिज्मेटिक।
Anyone? Sir, hexagonal. Hexagonal. Sir, hexagonal. Hexagons are there. If you look carefully, hexagons दिख रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, it is visible. ये देखिए इधर से भी आ रहा है हेक्सागन। ये सब आपके लैब के सैंपल्स हैं। सर वो पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा, पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, कंफ्यूज हो रहा है। अभी आ रही है? आपका भी कैमरा देखिए ठीक ठाक होगा तो आना चाहिए। आ रही कि नहीं? सर ठीक है। देखो भाई, रीजन इज वेलकम्ड ऑलवेज, प्रॉपर रीजन और द रीजन विच इज रीजनेबली गुड आई एक्सेप्ट। बट अगर कोई डे बाय डे यही करे कि सर आप पिक्चर क्वालिटी खराब है, इसका ये खराब है, उसका वो खराब, हाँ जहाँ खराब होगा आई एक्सेप्ट, जहाँ नहीं खराब होगा थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। जिसको आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक से दिख रहा हो और औरों को भी दिख रहा हो, तो उसको माना जा सकता है कि ये दिख रहा है। और आपका धर्म है कि इसको आइडेंटिफाई करना, यदि दिख रहा है। जब बिल्कुल नहीं दिख रहा तो उसमें क्या हम जबरदस्ती तो नहीं कहेंगे नहीं आप बताओ, ठीक है। तो फॉर्म हेक्सागोनल आपने देखा, फ्लेकी फॉर्म देखा, मैसिव फॉर्म पे आते हैं, लंप लाइक फॉर्म व्हिच हैज नो डेफिनिट शेप, मैसिव फॉर्म। एक मिनट लेट मी देखिए Sir, ये दिखा sir, any example of prismatic form? लाइक कैल्साइट, आर्टोक्लेज। मैं आऊंगा फॉर्म पे ही चल रही है चर्चा। आई एम डिस्कसिंग द फॉर्म ओनली। मैसिव फॉर्म, कोई डिफरेंट फॉर्म लग रहा है? मास लाइक, लंप लाइक लग रहा है कि नहीं? Yes, sir. अरे इतना जल्दी बोर हो रहे हैं, अभी तो 50 मिनट पढ़ाया है। आप ये देखिए, ये लंप लाइक, मास लाइक, सो दिस इज कॉल्ड मैसिव फॉर्म। Massive form, massive, mass like, lump like, so this is called massive form. And this is the name of the mineral, pyrolusite. All these properties are listed here. So many minerals like some, this is the quartz hexagonal में भी मिलता है, massive भी मिलता है, massive भी quartz मिलता है। तो आप ऐसा न सोचें कि हेक्सागोनल में क्वार्ट्ज है तो केवल जब भी क्वार्ट्ज दिखे तो वो हेक्सागोनल ही दिखेगा, ऐसा नहीं होता। सो ऑल दीज, एक मिनट लेट मी कम डाउन। इसमें लस्टर कौन सा है? Some metallic. Sir. वेरी गुड, इसका तो बताया था आपने। इसको भी फॉर्म क्या बोलेंगे? फॉर्म लंप, लंप थोड़ी Massive. देखिए आप प्रिज्मेटिक फॉर्म की जो बात कर रहे थे, कैल्साइट, आई हैड cited the example here. If you suppose that any student tell it is a cubic form, do you agree with him or not? Him or her? Yes, sir. Yes, sir. For the first time. Yes, For sir. the first time, Yes, sir. But it is not cubic. क्यूबिक फॉर्म कैसे हुआ है? क्यूब की क्या डिफिनेशन है? ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए और हर एंगल के हर साइड से 90 डिग्री का एंगल। तो कहाँ इक्वल है? सभी डायमेंशंस इसके कहाँ इक्वल है? आप थिकनेस देख रहे हैं? थर्ड डायमेंशन इज नॉट सिग्निफिकेंट देन एक्स वाई। जेड जो है थिकनेस जो है इसकी कम है, जेड थिकनेस, तो कहाँ है? सर क्यूब नहीं तो क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड की डिफिनीशन क्या होती है? सर जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफाइंड नहीं होती है, मतलब फिक्स, मतलब सेम हो ऐसा है, बट क्यूब जैसे ही शेप रहता है। क्यूबॉइड क्यों? और लोग का क्या विचार?
थोड़ा और टेट्रागोन है हैं? क्यूबॉइडल नाम का कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही नहीं होता सर। ओह वाह, वेरी गुड। क्यों नहीं होता है? सर 14 सर वो प्रिज्म में आ जाता है। ब्रावाइस लैटिस हमने पढ़े थे उसमें। प्रिज्मेटिक इसलिए नाम इसका है, प्रिज्मेटिक फॉर्म। प्रिज्मेटिक फॉर्म, देन कॉलमनर फॉर्म। ये टूटा हुआ बेरिल है, टूटा हुआ बेरिल है क्रिस्टल। कॉलमनर, लाइक ए कॉलम, कॉलमनर फॉर्म, लाइक ए कॉलम। दिस इज आल्सो प्रिज्मेटिक। द पिंक इज कलर आर्थोक्लेज, जो 6 नंबर हार्डनेस है मोहो स्केल में। ये देखिए, ये 6 नंबर हार्डनेस मोहो स्केल का मिनरल है। कैल्साइट मोहो स्केल का मिनरल है या नहीं है? है सर, विद हार्डनेस स्केल 3। क्या होनी चाहिए कैल्साइट की? 3। Very good. The very quickly, this is a mass-like, lump-like, massive form. Here, just I want to explain or highlight rather that color is brown of the hematite, but streak is cherry red. What I just explained in the beginning, that it is not necessary always what is the color of the mineral that the streak will be same. It is here different. You see, brown color, cherry red. Okay. So, सर ऐसा हो सकता है कि जैसे सरफेस पे मिनरल का किसी ऑक्सीडेशन या किसी वजह से कलर चेंज हो जाए और अंदर उससे कोई और कलर हो? ना, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा है तो आप फ्रेश मिनरल, इसीलिए आप, योर पॉइंट इज वेरी वैलिड, योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड, योर पॉइंट इज वेरी वैलिड। देयरफॉर इट प्रोवाइड्स ए रोड मैप। आपका क्वेश्चन एक रोड मैप देता है, एक अप्रोच देता है, नॉट रोड मैप, एक अप्रोच देता है स्टडी करने का। क्या देता है कि कभी भी मिनरल, गंदे मिनरल को स्टडी नहीं करनी चाहिए। गंदा मतलब ऊपर से डर्टी हो, सॉइल लगी हुई हो, डस्ट लगा हुआ हो, कभी भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मत शुरू करो जब तक उसको वॉश न कर लो, उसको फ्रेश देखो कि फ्रेश क्रिस्टल है, तभी स्टडी करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। जिसने भी पूछा है, इसके पूछने से ये फायदा हुआ कि कब मिनरल को फील्ड में या लैब में स्टडी करें, जब हमको मिनरल साफ सुथरा दिखे। यदि कोई सुपरफिशियल चीजें उस पर लगी हुई हों, कोई डर्टी मटेरियल है, सॉइल है, डस्ट है, कोई भी चीज है, उसको तुरंत रिमूव करें, तब हम उसको स्टडी करें। तब जो हमको रियल प्रॉपर्टीज आएगी वो किसी डस्ट की, किसी उसकी नहीं आएगी। ठीक है? Any doubt? Any questions? स्पेसिफिक ग्रेविटी एक प्रॉपर्टी है जो कि रिलेटिव मास, जब रिलेटिव डेंसिटी रेदर हम जब एस्टिमेट करते हैं इन द एयर एंड इन द वाटर ऑफ द मिनरल, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। वी आल्सो स्टडी दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द मिनरल इन द लैब, लो, मीडियम, हाई उसका होता है। आप एक काम करना, अभी साफ कॉपी बनाते रहना। हाउ यू विल राइट द प्रैक्टिकल, जिसे प्रैक्टिकल में पढ़ाएंगे सब, तो अभी थियरी का पार्ट था। अभी थियरी में फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ाया आपको। अब आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें कि हाउ टू राइट, एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द कलर टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी? Then in the next class I will be deliberating upon the classification of the minerals and application of the minerals in means the importance of the mineral in the identification of the rock. क्योंकि हमारे सिविल इंजीनियर्स के लिए रॉक ही इंपॉर्टेंट है, मिनरल उतना इंपॉर्टेंट है। मिनरल तो हम इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको जिससे रॉक को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है, इसलिए, क्योंकि रॉक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉक पे ही आपका स्ट्रक्चर बनता है, रॉक से स्ट्रक्चर बनता है, दोनों। रॉक पे फाउंडेशन, जहां सॉइल में फाउंडेशन देना, वहां भी आप देखते हैं स्टिकी, जब सॉइल जब कंसोलिडेटेड सॉइल हो जाती है, काफी कॉम्पैक्ट सॉइल आती है, तभी हम फाउंडेशन को रिकमेंड करते हैं। रॉकी एरिया में रॉक के ऊपर फाउंडेशन ले डाउन करते हैं किसी भी ब्रिज, टनल्स और डैम का। इसी तरह से रॉक जो इन्वॉल्वमेंट है कंस्ट्रक्शन में भी, स्टडी आई हैव ऑलरेडी डेलिब्रेटेड अपॉन इट, द इंपॉर्टेंस ऑफ द रॉक फ्रेगमेंट्स और रॉक for the construction of the civil engineering projects, how the minerals, free silica minerals are important to be identified, or the alkali aggregate reactions. So all these are very important. So if any doubt, any questions, any suggestions, you can have. आप कोई है, कोई डाउट है, पूछ लीजिए।
स्पेसिफिक ग्रेविटी जो ले रहे हैं एयर टू वाटर रेशियो ले रहे हैं ना सेम मेंडल का? हाँ। ओके सर, थैंक यू। विद दीज वर्ड्स आई थिंक आप हॉलीडे कब तक हो जाएगा? संडे तक, ठीक है ना आपका? क्यों? यस सर। है ना? सो आई विश हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय दिवाली। हैं? शुभ दीपावली सर। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली सर। आप सभी को आप अच्छे से दिवाली मनाइए विदाउट एनी यू कैन से दैट विदाउट एनी हजार्ड। तो कोई आप अच्छे से दिवाली मनाइए, अच्छे से फिर लौटिए क्लास में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर एक छोटा सा डाउट था। लीव कर भाई, क्या हुआ? सर लीव कर चुके हैं सर। डाउट पूछो डाउट। आदित्य बाणवाल है टॉपर। रिकॉर्डिंग